Good morning, children. I am Datta ma'am. Today, I will teach you lesson 3, playing the game from prose. Before it, I have teach you 2 lessons already. Okay, beta? First, second, and now it is third lesson. Playing the game. Main character of this lesson, Alan. Alan is a main character, a young boy. Second character, his father, encouraged him to play cricket. Okay? And third character, an old man, a poor gentleman. Third, sport teacher, strict and punctual. Okay? Now this lesson is about a young boy. Okay, and its writer is Arthur Mee. He was a English writer. He has written on the topics of younger generation's interest. Okay, through his writings, he teaches moral lesson and importance of value. His style is easy and graceful. अर्थर में लिखने का जो इन्होंने जो भी लेसन लिखा उसमें इनका मेन उद्देश्य रहता है कि लेसन का कोई अर्थ निकले, कोई मॉरल सेंस हो। इन्होंने कोई भी लेसन लिखा उसमें यही इन्होंने कोशिश की कि बच्चों को इसमें कुछ सीखने की कुछ सीखा जाए, बच्चे इससे कुछ सीखें। तो ये लेसन भी बेटा उसी तरह है, इन्होंने लिखा है कि ताकि आप इस लेसन से कुछ सीखो। ठीक है? दिस लेसन इज अबाउट ए यंग बॉय, हिज नेम वॉज एलान। His name was Alan. He who had a high moral sense, He was selected to play as a cricket team in his school, and he was proud of him that he was chosen to the match. Okay. His parents were also very excited and happy that Alan was chosen the cricket team match. So they encouraged him, and his father promised him to buy a bicycle if he won the match. While Alan going to the playground, he was detained by an old man. The old man wanted him to take him home. Alan had to attend on him. He attended on him when he reached the ground. The game had already started because he was late, and sport teacher forbade him to play the match. He was very sad and dejected, but he was given the bicycle promised by his father. And next day, his classmates were also welcomed him or gave 3 cheers. Okay, now events. Alan was playing school cricket team. On his way, he met an old man. The old man requested him to reach home. Doing all this, Alan reached playground late. The sport teacher forbade him to play the match. Alan returned home. His father welcomed him. The next day, his classmate gave 3 loud cheers, जो मैंने आपको अभी बताया. Means Alan's.
घर से ये निकला स्कूल जाने के लिए। Of course he would, for Alan was playing in the school cricket match and was mightily proud of being chosen to play. He had practiced bowling with his father. ठीक, ये जो खेलना था उसके फादर भी इसके लिए बहुत उत्साहित थे और वो दिन रात रख के एलान को इसके लिए प्रैक्टिस करवाते थे कि ताकि एलान जीते। उनको भी ये था कि एलान पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करें। अतः वो एलान के साथ लगे रहते थे, कोशिश करते थे कि एलान भी इसमें जीत हासिल करे। रास्ते में स्कूल के लिए एलान जा रहा था। On way to the sport ground, Alan had to pass the little three-cornered meadow, and as he reached it, he saw a very old man leaning heavily on his stick. As Alan passed, the old man called out to him. इस तरह से जब वो घर से निकला स्कूल प्लेग्राउंड जाने के लिए, तो रास्ते में उसको एक बुढ़ा आदमी मिला जो बेचारा काफी गरीब था और अपनी छड़ी के साथ लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। उसने एलान को आवाज दिया, कैन आई हेल्प यू? आस्क्ड एलान। एलान ने भी बहुत दयालुता से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? The old man in a thin, cracked voice requested Alan to let him take his arm. He said, this road is so hilly and wind is almost too much for me. एलान ने जब उससे पूछा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो एलान बुढ़े आदमी ने कहा कि हाँ बेटा, आप मेरी बाह को पकड़ लीजिए, पकड़ के मुझे सहारा दीजिए और इस रास्ते मुझे ले चलिए, क्योंकि रास्ता जो है बहुत उबड़ खाबड़ है और मैं इसमें चलने में असमर्थ हूँ, अतः आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। I would love to, you sir, said Alan, for he knew he would easily make what time he had lost by running when he left the man. अब अलान ये सोच रहा था कि चलो कोई नहीं, किसी की मदद करते हैं और फिर उसकी मदद करके उसको उसके घर तक पहुंचाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दौड़ कर भी जल्दी से प्लेग्राउंड पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो बच्चा था तो वो समझ रहा था कि मैं इसको पहुंचाने के बाद जल्दी से दौड़कर प्लेग्राउंड पहुंच जाऊंगा, अतः उसने इनकार नहीं किया। But the poor old gentleman leaned heavily on Alan's sturdy little arm and tottered along like a baby. लेकिन एलान इतना नहीं समझ पा रहा था कि वो आदमी जो था चलने में बहुत ज्यादा मजबूर था और बहुत लड़खड़ा के चल रहा था, तो उसको बहुत समय लग रहा था चलने के लिए। एलान ने इसके लिए एक्सप्लेन किया। एलान एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन that he was on his way to cricket match and that he must not be late, but he seemed not to hear. एलान ने उस बुढ़े आदमी को ये समझाने की कोशिश की कि उसको खेल के लिए जाना है जिसमें उसको देर हो रही है, लेकिन ऐसा लगा कि उस बुढ़े आदमी ने उसकी बात को नहीं सुना। उसने फिर उससे पूछा कि वेयर डू यू लिव सर? कॉल्ड एलान एट द लास्ट ओल्ड मैन। आखिर में उसने फिर सोचा कि ये सुन नहीं पा रहा, तो उसके कान की तरफ जाके कानों में कहता है कि आखिर सर आप रहते कहाँ हैं? Up the road and somewhere around the corner, he answered in his inward voice, I should be so much obliged if you could see me home. You look a very kind little boy. उसने कहा, इसके ऊपर चलते हुए रोड के ऊपर की तरफ कॉर्नर में मेरा घर है, मुझे वहां तक छोड़ दो, और मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम जो हो एक बहुत ही दयालु छोटे बच्चे हो, अतः तुम मेरी सहायता अवश्य करोगे। See him home, and they were still a long way off. If only he could walk faster, why the teams would be already on the field and captain would
wondering why he did not come. अब चलते हुए उसको ये लग रहा था कि रोड तो इस तरह से अगर ये धीरे धीरे चला तो बहुत देर में ये इसका रास्ता खत्म होगा, वो कब तक पहुंचेगा, ये उसको चिंता हो रही थी। और वो ये भी सोच रहा था कि जो टीम का कैप्टन है वो भी सोच रहा होगा, आश्चर्यचकित हो रहा होगा कि मैं अभी तक प्लेग्राउंड क्यों नहीं पहुंचा। Suddenly, the old man stumped over a loose paving stone and fell heavily the ground. अचानक वो बुढ़ा आदमी लड़खड़ाया और अपने जो नीचे जमीन पर वो गिर पड़ा। Don't leave me, little boy, murmured the old man. अब ओल्ड मैन ने कहा कि मुझे छोड़ो मत, मुझे पकड़े रहो, मुझे छोड़ो मत। अब ये सब करते, नो आई विल स्टे हियर सेड अलान एंड ही सैट डाउन बिसाइड हिम एंड सेड द समवन वुड कम दैट वे। अब इस तरह से वो ये समझ रहा था कि इसको अकेले तो मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ और मैं जल्दी इसके साथ घर भी नहीं जा सकता क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो किस तरह से मैं पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, यही वो सोच रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। तो उसने अचानक कहा कि ठीक है, मैं आपको छोड़ता नहीं हूँ, मैं आप ही के साथ हूँ, आप परेशान मत होइए। और उसके बाद उसने कहा मैं यहीं बैठा हूँ, और अलान वहीं बैठकर इंतजार करने लगा कि हो सकता है कोई यहाँ पे आए जो उसकी मदद करे। ठीक है, और देखिए किस्मत उसकी अच्छी थी कि Alan started anxiously up the down the road during the minutes of the followed. The minutes almost seemed like hours. Then at last, turning the corner, came a jolly-looking policeman. Alan would have shouted for joy. अब वो वहीं बैठकर अलान इंतजार कर रहा था कि कोई आए तो वो उससे उसकी मदद के लिए कहे, और उसकी किस्मत अच्छी कि उसको एक कॉर्नर से एक पुलिसमैन जो काफी खुश मिजाज का लग रहा था वो चला आ रहा था। उसको देखकर उसने उसे आवाज दी और उसको बहुत संतुष्ट हुआ। I will see this gentleman home, little boy, the policeman said. After all, explained what had happened. उसने उसके साथ क्या घटा था सब पुलिसमैन को बताया। पुलिसमैन ने कहा बेटा आप निश्चिंत रहिए, मैं इसको इसके घर तक छोड़ दूंगा। Then Alan ran off the flew as fast as his legs would carry him to the sport ground. But the game had started. अब अलान जो है, जैसे ही उसने उसको छोड़ा वो तेजी से दौड़ता हुआ, उसने यही सोचा कि मैं तेजी से दौड़ता हुआ स्पोर्ट ग्राउंड पहुंच जाऊंगा और खेल में शामिल हो सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। Why, it's Alan, said the teacher, who was standing just inside the entrance. You are not much good if you can't come up to the time. We have put your young Harold Banks in your place. Fortunately, he is putting some good balls over. उसके वहां जाने पर टीचर ने, जो स्कूल टीम का कैप्टन था, उसने उसको देखा और उसने कहा कि एलान तुम बहुत लेट आए हो और ये तुम्हारे लिए ठीक बात नहीं है, तुम्हें टाइम से आ जाना चाहिए था। अब चूंकि एलान उस समय कुछ वर्णन नहीं कर सकता था कि उसके साथ क्या हुआ, क्या बात हुई, तो वो इसको बता नहीं सकता था, अतः वो बेचारा चुपचाप अपना सिर नीचे करके खड़ा रहा। उसने टीचर ने यहाँ तक कहा कि हमको देर हो रही थी इसलिए मैंने तुम्हारी जगह एक दूसरे लड़के को रख लिया है जो कि बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहा है। उसने उसको खेलने के लिए मना कर दिया। अब ये देख सुनकर आप खुद समझ सकते हो बच्चे कि उस लड़के के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिसने कि शुरू से लेकर अंत तक क्रिकेट के लिए इतना मेहनत किया। उसके पिता उसके साथ लगकर प्रैक्टिस करवाते रहे, रात दिन बॉलिंग के लिए उसको प्रैक्टिस करवा रहे और इतना जोश उसमें दिया कि वो खेलने के, लेकिन सिर्फ एक
रास्ते में किसी बुढ़े आदमी की सहायता करते हुए वो बेचारा वहां पर लेट पहुंचा और समय से नहीं पहुंच पाया। इस तरह जब टीचर ने उसको मना कर दिया तब वो बहुत उदास मन से घर की तरफ लौटा। अब वो रास्ते में यही सोचता हुआ जा रहा था कि मैं अपने पिता से क्या कहूँगा। उसके पिता ने तो उसके साथ इतना किया, वो उसको कैसे बताएगा कि वो खेल नहीं पाया। और बहुत उदास मन से वो घर की तरफ गया। His father opened the door. उसके पिता ने दरवाजा खोला। Bravo Alan, he said, patting his little son on the back. उसने बड़े गर्म जोशी के साथ अलान का स्वागत किया और उसको शाबाशी दिया, उसका पीठ थपथपाया। ऐसा करने पर, but daddy, began Alan, but his father interrupted him. लेकिन वो कुछ बोलना चाह रहा था। वो यही समझ रहा था, जब मैं खेला नहीं, मैं जीता नहीं, तो मेरे पिताजी मुझको शाबाशी किस बात के लिए दे रहे हैं, क्यों मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो वो कुछ टोकना चाहता था। तो इतने में उसके पिता ने खुद उसको बीच में रोक दिया। एंड इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन, ही सेड, यू सी, I came up behind that policeman and he told me what had happened. बेटा, उसके पापा ने कहा, बेटा मैं सब कुछ जानता हूँ। जब तुम जा रहे थे, वो पुलिसमैन जा रहा था, मैं उसके पीछे ही आ रहा था और मैंने सारा कांड देखा और उस पुलिसमैन ने भी मुझे सारी बातें बताई। अतः, so I knew you were playing the game although it was not on the cricket pitch. कह रहे हैं, ठीक है, तुमने क्रिकेट पिच में खेला नहीं, लेकिन तुमने उससे बढ़कर खेल खेला, उससे अच्छा खेल खेला, अतः तुम जीत गए। और जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, ठीक। So I knew you were playing the game, although I was not. It was not on the cricket pitch. So I went back to the marketplace and bought the bicycle I promised you. उन्होंने कहा, ठीक, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम जीतोगे तो मैं तुमको एक बाइसिकल दूंगा। अतः इसीलिए अगर तुम वो खेल नहीं जीत पाए तो तुमने बहुत बड़ा, उससे भी अच्छा गेम जीता। इसलिए मैं तुरंत मार्केट गया और मैंने तुम्हारे लिए एक बाइसिकल, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैंने एक बाइसिकल तुमसे, तुम्हारे लिए खरीदा। एंड अलान, वी वर प्राउड ऑफ यू, योर मदर एंड आई। और अलान, इन सब के पीछे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गर्वित हूँ और तुम्हारी माँ भी बहुत गर्वित है तुम्हारे इस काम से। एंड इन द classroom next morning, the boys gave the alarm 3 loud cheers. Only school boys can, for in some mysterious fashion they too had learned all about his kind act. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गया तो स्कूल के बच्चों ने भी उसके बहुत ही गर्म जोशी के साथ उसका स्वागत किया और तालियां बजाई। और उसने उसके जो इस तरह से उसने एक काम किया था, उसके लिए उसको बहुत ज्यादा शाबाशी दिया। उसके टीचर भी बहुत खुश हुए। ठीक है, तो बेटा यहाँ मेरा ये लेसन खत्म होता है। मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि सिर्फ पढ़ना लिखना यही बड़ी बात नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आप अपने अंदर कुछ मॉरल सेंस भी रखिए। कभी कभी बच्चे ऐसे हैं, कोई रास्ते में गिर जाता है तो वो बहुत हंसते हैं, लेकिन नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको उठकर उसको उठाना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। कोई रास्ता पार करता है तो उसको आप पार कीजिए, उसको पार करवाइए। ठीक है, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। हमारा इस लेसन का, लेखक का यही उद्देश्य है कि आप इस लेसन को पढ़ो, समझो और इसकी जो मेन इसका मॉरल है उसको भी आप अपनाओ। ठीक है, इन लास्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो इस लेसन को बहुत ही केयरफुली से पढ़िए, बहुत अच्छे से इसको रीड कीजिए। अगर आप इसको अच्छे से रीड करोगे बेटा
तो आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ इसमें हार्ड वर्ड्स हैं, ये भी आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप इसको भी अच्छे से समझिए और समझिए। ठीक, ओके बेटा। प्लेइंग ऑफ द गेम, मुझे पूरा यकीन है कि आपने लेसन को बहुत ध्यान से रीड किया होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस लेसन को आप बहुत अच्छे से पहले रीड कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि रीड करने से आपको एक छोटी छोटी बातों का भी अच्छे से पता चल जाता है। तो लेसन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से एक छोटा लड़का एलान, उसके अंदर एक जुनून था क्रिकेट को जीतने का, तो उसने किस तरह से अपने इसको करने के लिए पूरी कोशिश करी, लेकिन अंत में किसी एक बुढ़े आदमी की मदद करने के पीछे वो इसको हासिल नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, इसने नहीं किया, लेकिन उसने उससे ज्यादा अच्छा काम किया कि किसी की मदद करी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस लेसन को समझने के बाद आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉम्पेरिजन, यानी आपको पता है जो लेसन हम पढ़ाते हैं उसका पैसेज लेकर उसका हम शॉर्ट में पैसेज लिखते हैं और उसके बाद उसका हम क्वेश्चन आंसर इसी में से सिलेक्ट करते हैं। आपको कुछ इसको लेसन को पहले इसका पैसेज को आप समझेंगे कि ये पैसेज हमने जो लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना। यानी आप इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसको पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आंसर को फिर आपको करना है। ओके बेटा। नाउ लेसन, Alan's mother came to the gate to see him off. Goodbye, Alan. Do our best, she called out. आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं, गुड बाय करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो उसी तरह से अलान जब अपने घर से बाहर जा रहा था तो उसकी माँ उसको छोड़ने गेट तक आई और उसको गुड बाय कहा और क्या बोला कि आपका सब अच्छा हो, आप अच्छे अच्छे सब काम को करो। इस तरह से माँ की दुआ लेकर वो आगे बढ़ा। I will try, mummy, answered Alan, and waving his hand, he ran out of the gate and up the road. जब मम्मी ने कहा तो उसने क्या कहा, ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करूंगा, जैसे आपने कहा वैसा मैं कोशिश करूंगा। और उसके बाद अपने हाथ को हिलाता हुआ मैंने बाय करता हुआ दौड़कर वो गेट से बाहर निकल गया और कहाँ गया, रोड पर तुरंत। Do his best of course, do his best of course he would, for Alan was playing in the school cricket match and was mightily proud of being chosen to play. Do his best of course माने उसका अच्छा ही सब हो, अच्छा ही सोचा, अच्छा ही हो, ये उसने सोचा। और फॉर अलान वॉज प्लेइंग, अलान कहाँ जा रहा था, स्कूल में क्रिकेट मैच खेलने के लिए। और ये क्योंकि वो मैच बहुत अच्छा खेलता था, अच्छा उसका प्रदर्शन देखा खेलने में, तो इसलिए उसको अपने ऊपर उसको बहुत ज्यादा प्राउड हुआ, बहुत गर्व हुआ कि उसको स्कूल क्रिकेट टीम में चुन लिया गया, उसके प्ले के लिए उसको चुन लिया गया। He had practiced bowling with his father for weeks. अब देखिए, ये नहीं कि उसके अंदर बल्कि उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश थे कि अलान को टीम में चुन लिया गया, अतः वो भी उसके साथ लग गए और प्रैक्टिस करा। उसके पिता को इतना ज्यादा वो उत्सुक थे, इतना एक्साइटेड थे कि वो भी दिन रात उसके साथ लग गए और उसको बॉलिंग की प्रैक्टिस कराते थे। नाउ डैडी सेड ही वाज शेपिंग वेल। अब डैडी जब उसको करवा रहे थे, फादर उसको करवा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, नहीं अब तुम बहुत अच्छा जा रहे हो, यानी अब तुम अच्छा कर लोगे, इतनी मुझे उम्मीद है। डैडी वाज नियरली एज एक्साइटेड एज अलान।
over the match, and he promised that if Alan's side won, he would buy him a bicycle. अब कोई भी काम अच्छा करते हैं तो माँ बाप से बच्चे ये भी उम्मीद करते हैं, जैसे आप अच्छा रिजल्ट करोगे किसी चीज के लिए तो आप यही सोचोगे कि हमको हमारे मम्मी या पापा कोई गिफ्ट दे, जिससे आप और ज्यादा उत्सुक हो जाते हो। तो उसकी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए उसके पिता ने बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और उन्होंने कहा, एलान, अगर तुम मैच खेल लोगे और जीत जाओगे तो मैं तुमको वादा करता हूं कि एक साइकिल खरीद कर दूंगा। ऐसा उसके पिता ने उसको कहा। तो आपने इस पैराग्राफ का ये जो पैसेज है इसका अर्थ ये समझा। ठीक है बेटा, अब हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन जो है ये हमने ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको कोई भी पैसेज दिया जाता है तो उसमें आपको लेसन नेम एंड देन ऑथर नेम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बेटा आप कोई भी पोयम पढ़िए, कोई भी लेसन पढ़िए, सबसे पहले उसके पोएट और उसके ऑथर राइटर का नेम अच्छे से आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपका काम है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, राइट द नेम ऑफ द लेसन from which the above passage has been taken. Who is the author of this lesson? है ना, ये पूछा है कि ये जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को किस लेसन से लिया गया है ना, पहले ये पूछा किस लेसन से इसको लिया गया है और इसके ऑथर कौन है। तो आप अगर लेसन को अच्छे से पढ़ोगे, ऑथर को याद रखोगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो। अब जैसे आंसर है, द लेसन नेम इज प्लेइंग द गेम। ठीक है ना, लेसन का नाम क्या है, प्लेइंग द गेम। एंड ऑथर इज अर्थर मी, इसके ऑथर कौन है, अर्थर मी। ये आपका फर्स्ट आंसर। नाउ सेकेंड, why did Alan's mother came to the gate? आपने पढ़ा था पैसेज में, Alan's mother came to the gate to see him off. Goodbye, Alan. Do your best. तो अलान की मम्मी गेट पर क्यों आई थी? अलान की मम्मी, Alan's mother came to the gate to see him off. उसको बाहर तक छोड़ने के लिए, विश करने के लिए गेट तक आई थी। नाउ वेयर वॉज अलान गोइंग? अब अलान अगर जा रहा था तो कहाँ जा रहा था? आपने इस पैसेज में पढ़ा कि वो कहाँ जा रहा था, पता है? हाँ ठीक, आप ठीक सोच रहे हो, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलने के लिए वो अपना प्ले ग्राउंड जा रहा था। ठीक है, तो अलान वॉज गोइंग इन द प्ले ग्राउंड फॉर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वो खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए प्ले ग्राउंड जा रहा था। नेक्स्ट, व्हाई वाज अलान माइटली प्राउड ऑफ? अब कोई भी चीज ऐसा है, अगर आपको जैसे स्कूल में ही आपने कोई चीज जीता है या कुछ काम किया है, किसी चीज के लिए आपको चूज कर लिया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, तो आप अपने को बहुत गर्वित महसूस करते हो कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि स्कूल में मुझे इसके लिए, जैसे सिंगिंग, कोई अच्छा गाना गाता है तो उसको गाने के लिए चुन लिया जाता है, कोई अच्छा डांस करता है उसको डांस के लिए चुन लिया जाता है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कर्सिव राइटिंग बहुत प्यारी होती है, उसको उसकी राइटिंग के लिए दिया जाता है, तो तब आपको ऐसा लगता है कि अरे इसके मतलब मेरे अंदर ये हुनर है और मुझे इसके लिए चुन लिया गया, तो आप अपने को बहुत गर्वित महसूस करते हो। तो इसी तरह एलान भी जो था, उसको जब क्रिकेट टीम के लिए चुन लिया गया तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा अपने को गर्व महसूस कर रहा था कि मैं इस लायक हूँ कि मुझे इस स्कूल टीम में चुन लिया गया। तो ये है, why was Alan mightily proud of? Alan was mightily proud of he being chosen to play cricket team, है ना, वो इसीलिए गर्वित हो रहा था कि उसको क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। Now, what promise did Alan for what promise did Alan's father
make to him. अब देखिए, ये आपने पढ़ा, इसमें ये आपने पढ़ा ना, इसमें लिखा हुआ है डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज अलान ओवर द मैच एंड ही प्रॉमिस। देखिए पैसेज में आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं से ढूंढो या दिमाग में जोड़ लगाओ, आप सीधे पैसेज को पढ़ो, बहुत अच्छे से आप पैसेज को पढ़ो। इस पैसेज में ही आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा बेटा, इसलिए ना घबराने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है, सिर्फ आप समझो कि आपको किस तरह से करना है। तो उसके फादर ने क्या प्रॉमिस किया था कि व्हाट प्रॉमिस डिड एलान टू हर टू Alan's father made to him. Alan's father promised if he won the match, he would buy him a bicycle. अब देखिए उसके फादर ने उससे यही प्रॉमिस किया कि अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुमको तुरंत एक साइकिल खरीद कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने इस पैसेज से यही हमने देखा कि किस तरह से एलान जो था अपने पिता के साथ बराबर मेहनत करता रहा, कोशिश करता रहा और अंत में उसने अपने पिता से ये भी वादा करवा लिया कि वो जीतेगा तो उसको एक बाइसिकल दी जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट कंपैरिजन पैसेज है। नाउ अब हम सेकेंड पैसेज का एक्सप्लेन करते हैं। ओके बेटा, मैंने पहला पैसेज आपको एक्सप्लेन किया, उसका क्वेश्चन आंसर आपको समझाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब इसको लिखाया मैंने कि अच्छे से आप पढ़िए समझिए। अब दूसरा कंपैरिजन हमने आपसे बताया था, एक किया, अब दूसरा कंपैरिजन है ये देखिए, द ओल्ड मैन इन ए थिन cracked voice requested Alan to let him take his arm. He said, this road is so hilly and he wind is almost too much. Means old man जो कि बहुत दुबला पतला सा था और उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी, उसने लड़खड़ाते हुए अलान से रिक्वेस्ट किया, अलान से विनती किया कि वो अलान उसके बाहों को पकड़ ले, उसके बाहों को पकड़े और उसने कहा दिस रोड इज सो हिली एंड ही विंड इज ऑलमोस्ट टू मच। उसने उससे विनती किया कि उसके बाहों को पकड़कर उसको सहारा दे, क्योंकि वो चलने में और ज्यादा तेज दौड़ने में, तेज चलने में असमर्थ था, इसलिए वो उसको वहां पकड़ ले। और क्योंकि इसलिए वो और नहीं चल पा रहा था क्योंकि रोड जो था वो बहुत उबड़ खाबड़ हिली एरिया था, मतलब पहाड़ी इलाका था, तो बहुत हिली होने की वजह से, पहाड़ी होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाया था। और ऊपर से और क्या था कि हवा बहुत तेज चल रही थी। ठीक है, हवा बहुत तेज चल रही थी, इसके लिए वो जो था ज्यादा अपने को टिका नहीं पा रहा था, हिल डुल रहा था। इसीलिए उसने कहा अलान से कि तुम मेरी बाहों को कस के पकड़ के मुझे ऊपर रोड में ले चलो। आई वुड लव टू हेल्प यू सर। देखिए, और कोई हो तो तुरंत कह दे मैं क्यों करूं, मुझे क्या पड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं बेटा, अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो आप उसकी मदद जरूर कीजिए, चाहे आपको जितने भी काम हो, कहीं भी जल्दी हो, लेकिन आपको सबसे पहले उस आदमी ने जो, और वो भी जो बेसहारा बुजुर्ग हो, उसकी तो आपको जरूर मदद करनी चाहिए। तो उसने भी कहा, देखिए उसने मना नहीं किया ऐलान में, उसने क्या कहा कि आई वुड लव टू हेल्प यू सर, मुझे आपकी मदद करने में अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी मदद करूं। said Alan, for he knew he could easily make up what time he had lost by running when he left the old man. क्योंकि वो बच्चा था और छोटा था, बच्चा था, जवान था, तो उसको पता है कि मैं इसको
बुढ़े आदमी को इसके जगह तक पहुंचाकर जो मेरा समय है उसको मैं दौड़ कर कवर कर लूंगा। उसने ये मन में सोचा कि मैं जो टाइम जो है उसके पीछे मेरा बेकार जाएगा, उसको पहुंचाने में जो टाइम मेरा ज्यादा लगेगा, उसको मैं इस बुढ़े आदमी को छोड़ने के बाद, इस जेंटलमैन को छोड़ने के बाद दौड़ कर वो समय मैं कवर कर लूंगा और अपने गंतव्य स्थान तक मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। ये उसने सोचा। But the poor old gentleman leaned heavily on Alan's sturdy little arm and tottered along like a baby. लेकिन जैसा कि उसने सोचा था कि इसको जल्दी से छोड़कर हम आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, ऐसा सोचना भी उसके लिए गलत हुआ, क्योंकि वो जो बुजुर्ग आदमी था वो बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहा था, बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था और बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहा था। और उसके बाद उसकी चाल ऐसी थी लड़खड़ाते हुए और रुक रुक के चल रहा था जैसे कि एक छोटा बच्चा, लाइक ए बेबी, एक छोटा बच्चा चलता है, इस तरह से वो चल रहा था। So slowly did he walk, बहुत ही धीरे, मतलब जिसको कि आप जानते हो कि जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया हो और ऊपर से कमजोर हो, बीमार हो, तो वो कैसे चलेगा? ना तो वो तेज दौड़ सकेगा, ना वो तेज चल सकेगा, तो वो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे चल रहा था। That 5 minutes had gone before they were halfway up the road. अब समझिए कि 5 मिनट ऐसे ही निकल गए उसको आधा रास्ता पार करने में, यानी थोड़े सा चलने के लिए भी उसका 5 मिनट समय बीत गया, समय ज्यादा लग गया, लेकिन वो उसको उसके गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाया। तो यहाँ तक मैंने आपका पैसेज यहाँ तक ही दिया है कि हाफ वे अप द रोड। ठीक है, तो इस तरह से कि हम देख रहे हैं कि इस पैसेज का शॉर्ट में हमने यही समझा कि एलान जो था जब स्कूल से खेल के मैदान में जा रहा था तो रास्ते में वो बुढ़ा आदमी मिला और उसने उससे मदद मांगी, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था। तो उसने उससे कहा कि मेरी बाहों को पकड़ लो, क्योंकि वो बहुत लड़खड़ा के बहुत मैंने घबरा कर चल रहा था, इसलिए उसने कहा कि मेरे बाहों को पकड़कर मुझे रास्ता पार करा दो। और रास्ते में भी कैसे कि रास्ता भी बहुत हिली था, बहुत पहाड़ी था, इसलिए उसको लगा कि ये बच्चा छोटा है, जवान है और ये बच्चा मजबूत है, तो ये मुझे मेरे स्थान तक पहुंचा देगा। और उसको उम्मीद भी थी कि ये बच्चा मेरी बात सुनेगा, तभी देखो उसने कहा भी। और ऐलान भी ऐसा था, क्योंकि मैंने पहले आपको इस लेसन में एक्सप्लेन किया था कि एलन हैज ए मॉरल सेंस, ठीक है ना। एलन के पास जो था एक मॉरल सेंस था, नैतिक शिक्षा थी उसके अंदर, कि वो कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं करता था, अच्छे काम के लिए हमेशा उत्साहित रहता था। तो इसलिए उसने जब मदद मांगी तो उसने तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। और वो भला सोच भी रहा था कि मैं इसको अगर छोड़ने जाता हूँ और इसकी चाल भी ऐसी है तो कितनी देर में पहुंचूंगा, लेकिन वो इतना भी नहीं समझ पा रहा था कि इतना टाइम लग जाएगा। फिर भी उसने सोचा कोई बात नहीं, इसको छोड़ने के बाद मैं तो बच्चा हूँ, मैं तेज दौड़ूंगा, तेज भागूंगा और अपने प्लेग्राउंड तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इतना इसका वो है। अब बेटा, अब इसी पैसेज को आप भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, तो आपको क्या करना रहता है कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, समझो, और उसका आंसर आपको फिर इसी पैसेज से मिल जाएगा। आप इसी में ढूंढोगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ओनली आप सी दिस पैसेज। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिक्वेस्ट डिड द ओल्ड मैन मेक टू अलान। पहला यही था ना कि उस ओल्ड मैन ने अलान से क्या रिक्वेस्ट किया, क्या विनती किया। तो द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड अलान दैट he let him
टेक हिज आर्म एंड रीच द होम। उसने उसको यही कहा, रिक्वेस्ट किया कि कृपया तुम मेरी बाहों को पकड़ लो और मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। ये उसने उससे रिक्वेस्ट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एलान नो? एलान क्या जानता था? है, तो क्या जानता था मतलब एलान क्या जानता था? एलान क्या जानता था कि एलान न्यू दैट ही कुड इजिली मेक अप द टाइम। एलान ये जानता था अच्छे से कि मैं ये जो टाइम इसके पीछे लॉस्ट हो रहा है उसको मैं बहुत आसानी से कवर कर लूंगा। उसके अंदर ये मतलब था कि जितना टाइम मेरा यहाँ पे जा रहा है उसको मैं बहुत अच्छे से कवर कर लूंगा। द लॉस्ट बाय रनिंग व्हेन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन। जब वो इस बूढ़े आदमी को छोड़ेगा तो वो दौड़ कर इस टाइम को कवर कर लेगा और वो अपने समय से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। ये उसको अच्छे से पता था। नेक्स्ट, हाउ डिड द ओल्ड मैन वॉक? अब आपने यहाँ पे पढ़ा, इस पैसेज को अगर ध्यान से पढ़ा तो आपने देखा होगा कि वो ओल्ड मैन कैसे चल रहा था। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग था, बहुत ही दुबला पतला कमजोर था और बहुत ही लड़खड़ा के चल रहा था, इसीलिए उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो इसका आंसर होगा द ओल्ड मैन वॉक्ड टू sorry, the old man walked tottered along like a baby. वो कैसे चल रहा था? एक छोटे बच्चे की तरह लड़खड़ा कर चल रहा था। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा जो नया बिल्कुल बच्चा होता तुरंत नया नया चलना सीखता है तो बेटा वो तुरंत तो दौड़ने नहीं लगता, तुरंत तेज तो नहीं चलता है, वो भी गिरता पड़ता उठ के चलता है। तो उसी तरह से इसकी तुलना भी उसी एक छोटे बच्चे से की गई है कि वो जिस तरह से एक छोटा बच्चा लड़खड़ा के चलता है वैसे ही वो भी चल रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत बुजुर्ग था और दुबला पतला कमजोर था। नेक्स्ट, हाउ वॉज द रोड? अब देखिए रोड कैसा था? रोड कैसा था ये भी आपने इस पैसेज में पढ़ा, ध्यान से पढ़ो, इसी में आपको मिल जाएगा कि रोड कैसा था। ये देखिए, दिस रोड इज सो हिली। कैसा था रोड? बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका था, उबड़ खाबड़ था, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ था। द रोड वॉज सो हिली। आंसर है द रोड वॉज सो हिली एंड विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर हिम। एक तो रोड बहुत ज्यादा हिली था, उसके बाद हवा इतनी ज्यादा चल रही थी, इतनी तेज हवा चल रही थी कि उसके लिए बहुत मुश्किल था अपने को संभालना। ठीक है, हवा से वो और लड़खड़ा जा रहा था, इसलिए वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। ठीक है बेटा, तो ये आपका पैसेज का ये है आंसर। आप इस पैसेज को बहुत ध्यान से, ये नहीं कि बस आपने देख लिया और क्वेश्चन उतारने लग गए, ऐसा नहीं, आपको खुद अपने दिमाग में भी जोर लगा के इसमें से पहले आप कोशिश करो कि आपको आंसर इसमें से मिले। ठीक है, आंसर आप अपने से चेष्टा कीजिए, हो जाए उसके बाद तो फिर लिखा ही है, फिर तो आप लिख ही लोगे, लेकिन पहले स्वयं कोशिश कीजिए। ठीक है, अपना कोशिश करके लेसन को खूब अच्छे से समझो, पढ़ो, फिर उसका अपना आंसर दो। बेटा ये आपका 2 कंपैरिजन जो इसमें से लिखाना था मैंने आपको लिखा दिया। अब आपका रह गया है इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, वो अगली बार हम फिर उसको भी करवा देंगे। तब तक आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िए और कभी भी ऐसा ना हो कि बस जो लिखा है उसी को फटाफट कर लें, ऐसा नहीं, आप लेसन को पढ़ के समझ के अच्छे से उसका उत्तर दीजिए। ठीक, ओके बेटा। बच्चों अभी तक मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया, लेसन को समझाया। अच्छा, उम्मीद करते हैं आप लेसन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कंपैरिजन करवाया, वो भी आपने देखा समझा। अब इसके बाद हम आपको, क्योंकि आपके बुक में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, ये भी हम आपको करवाते हैं। ये करने के बाद आपका ये लेसन जो है वो फिनिश हो जाएगा। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए। नाउ लुक हियर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर।
First question, what had Alan practiced for weeks with his father? What did his father say about him? ठीक, मीन्स क्या है कि एलान ने पूरे हफ्ते अपने पिता के साथ किस चीज की प्रैक्टिस करी, किस चीज का वो किया, अभ्यास किया। What did his father say about him? उसके पिता ने इसके बारे में फिर उसको क्या कहा, अपने पिता के साथ उसने क्या किया, फिर पिता ने इसके बारे में उसको क्या बताया। तो इसका आंसर है बेटा, एलान हैड प्रैक्टिस बॉलिंग विथ हिज फादर फॉर वीक्स। क्योंकि एलान को क्रिकेट में खेलना था, इसके लिए मैंने आपको पहले भी लेसन में एक्सप्लेन किया था कि उसके पापा इसके लिए उसको बहुत ही ज्यादा एनकरेज कर रहे थे, तो इसीलिए वो भी उसके साथ लग गए कि उसको प्रैक्टिस करवाया ताकि उसका बेटा जो है वो क्रिकेट मैच को जीते। तो उन्होंने उसको प्रैक्टिस करवाया। हिज फादर सेड अबाउट हिम दैट ही वाज शेपिंग वेल। जब वो खेला और अच्छे से खेल रहा था, मन लगा के खेल रहा था, तो उसके पापा ने कहा कि हाँ तुम बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, इसका जो ये दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके पापा ने उसको एनकरेज किया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज एलान प्राउड ऑफ? एलान, ये मैंने पहले भी आपसे बताया था बेटा कि एलान किस बात के लिए उसको अपने ऊपर गर्व हो रहा था, किस बात के लिए? तो किस बात के लिए? एलान वाज प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले इन क्रिकेट मैच। ठीक है ना, उसको ये गर्व हो रहा था कि क्रिकेट मैच में उसको चुन लिया गया है। ये किसी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि स्कूल में कुछ हो और उसको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चुन लिया जाता है, तो इसको उसमें चुन लिया गया, इसके लिए वो बहुत ज्यादा गर्वित हो रहा था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड एलान्स फादर प्रॉमिस हिम टू गिव एज ए रिवार्ड? अब जिस तरह माँ बाप प्रोत्साहित करते हैं बच्चे को कि अगर आप जीतोगे तो हम आपको ये चीज देंगे, ऐसा करेंगे, जिससे बच्चे और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और ज्यादा उनको खेलने में जोश आ जाता है। तो उसके पापा ने उसको क्या कहा कि क्या प्रॉमिस किया? एलान्स फादर प्रॉमिस हिम, एलान के पिता ने उसको प्रॉमिस किया, इफ ही वोन द मैच, अगर वो मैच जीत जाता है, ही वुड बाय हिम ए बाइसिकल एज ए रिवार्ड, तो वो उसको इनाम के रूप में एक साइकिल खरीद कर देगा। ठीक है ना, मैंने समझिए पिता के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि उसका बच्चा जीते। कुछ भी बेटा आप अच्छा काम करोगे तो इसमें आपके पिता का जो है सीना चौड़ा हो जाता, गर्वित हो जाते हैं। कई दोस्त लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको ये बताते बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा ये किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया। और अगर आप कुछ गलत काम करोगे, गलत उसमें जाओगे, तो आप खुद सोचिए कि आपके पिता का सर शर्म से झुक जाता है। कहीं जाते हैं, दो चार लोग उसके बारे में, अरे तुम्हारे लड़के ने तो ऐसा किया, उसको मारा, उसको पीटा, गंदी गाली दी, ऐसा कंप्लेन जब जाता है आपके घर में, तो आप खुद सोचिए आपके पेरेंट्स के दिल में क्या बीतता है ना। तो बेटा प्लीज आप ये कोशिश करो कि आप अच्छा काम करो, अच्छे उसमें जाओ, ताकि आपके माँ बाप भी आपको पढ़ा के वो करके उसको भी गर्व महसूस हो कि हमारा बेटा कितना अच्छा है। तो उन्होंने फिर प्रॉमिस किया कि उसको बाइसिकल देंगे। नाउ फोर्थ, व्हाई कुड अलान नॉट प्ले द मैच? अब देखिए उसने शुरू से इतना मेहनत किया, इतने उसके पापा उसके साथ लगे कि वो जीतेगा, लेकिन आखिर क्या बात हो गई कि अलान जो है मैच को नहीं खेल पाया? ऐसी क्या बात हो गई? ठीक है ना, तो ये है, Alan could not play the match because when he arrived the playground, then the match had started. ठीक है ना, क्यों क्यों लेट हो गया था ये आप पहले पढ़ चुके हो। पहले हम आपको समझा चुके कि वो जब खेलने जा रहा था तो रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी ने उससे मदद मांगी, और उसको मदद करने के पीछे वो लेट हो गया, और लेट से प्लेग्राउंड पहुंचा तो खेल नहीं पाया। यही कारण है, क्योंकि बेटा हर चीज की एक टाइम होता है, एक उसका रूल होता है कि कैसे खेलें क्या हो। तो जब रूल के अकॉर्डिंग वो समय पे नहीं पहुंचा
तो उसको मना कर दिया गया, ठीक है, इसलिए वो खेल नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इंक्लूडेड द टीम व्हेन एलान डिड नॉट रीच द ग्राउंड इन टाइम। अब क्या है, अलान जब समय पर प्ले ग्राउंड नहीं पहुंच पाया तो उसकी जगह पे किसने खेला, किसको लिया गया? यंग हेरोल्ड बैंक was included the team when Alan did not reach the ground in time. किसको लिया गया? एक यंग बॉय हेरोल्ड बैंक, वो भी अच्छा खेलता था। बॉलिंग टीचर ने बताया कि ये भी बॉलिंग बहुत अच्छा करता है, इसलिए जब तुम लेट आए तो हमने तुम्हारी जगह इसको ले लिया। तो उसके ऐलान की जगह किसको ले लिया गया था? यंग हेरोल्ड बैंक्स। ओके बेटा, नाउ लास्ट क्वेश्चन, Alan made his way slowly home. Why? अब देखिए, जब वो खेल नहीं पाया, उसको मना कर दिया गया, तो बहुत उदास मन से वो अपनी घर की तरफ सिर झुका के बहुत स्लो वे में जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत उदास था। देखिए, अलान मेड हिज वे स्लोली होम बिकॉज ही अराइव्ड प्ले ग्राउंड लेट। ठीक, क्योंकि वो कहाँ प्ले ग्राउंड बहुत लेट पहुंचा। द मैच हैज स्टार्टेड and the teacher forbade him for play, so he was sad. अब जब इतने करने के बाद वो मैच गया, प्ले ग्राउंड में गया, तो लेट हो गया, उसके टीचर ने उसको मना कर दिया खेलने से, इसलिए वो बहुत उदास हो गया और खेल नहीं पाया। ठीक है बेटा, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। नाउ अब हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं। नाउ चिल्ड्रन, बिफोर इट मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिखाया था, ठीक है। अब आपका ये है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये लिखिए, इसके बाद आपका ये लेसन फिनिश हो जाएगा। तो पहले आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट है, व्हाट वाज एलान माइटली प्राउड, व्हाट हैड ही डन सो फार, है ना। किस लिए एलान जो था बहुत ज्यादा अपने को गर्वित महसूस कर रहा था और इसके लिए उसने क्या किया, ठीक है ना। तो एलान वॉज यंग बॉय हु हैड ए हाई मॉरल सेंस। एक तो क्या, एलान जो था बहुत ही छोटा बच्चा था और उसके पास क्या था कि मॉरल सेंस था, माने नैतिक ज्ञान था उसके पास। He was selected to play as a bowler in his school cricket team. और इसी की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मॉरल सेंस था, बहुत अच्छा काम करता था, बहुत ही होशियार बच्चा था, इसलिए उसको स्कूल क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। He was very happy and excited and mightily proud of being chosen to play. और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उत्तेजित था, उत्साहित था कि उसको खेल में चुन लिया गया। इसके लिए वो अपने को बहुत ज्यादा गर्वित महसूस कर रहा था। He had practiced bowling with his father for weeks. वो इसके लिए वो अपने पिता के साथ हफ्ताओं क्या था, बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। His father encouraged him that he was playing well. और इसके लिए उसके पापा ने भी उसको बहुत एनकरेज किया कि हाँ वो क्या कर रहा है, बहुत ही सही खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है। His father was also so excited that Alan won the match. He would buy him a bicycle as a reward. उसको और ज्यादा उत्साहित करने के लिए कि वो जीते, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम इस मैच को जीत जाओगे तो मैं तुम्हें स्वयं एक साइकिल खरीद कर दूंगा। ये है आपका बेटा पहला। अब दूसरा लॉन्ग आंसर है आपका, why could Alan not play the game? What did he do then? अब इसका है कि अलान जो मैच क्यों नहीं खेल सका। What did he do then? तब उसने क्या किया, ठीक, क्यों नहीं खेल पाया, देखिए क्या कारण है। Alan could not play the game because when he was going to the playground, he was detained by an old man. ये है उसका मेन कारण कि जब अलान इसलिए नहीं खेल पाया, जब वो प्ले ग्राउंड में
जा रहा था तो रास्ते में उसका सामना एक किससे हुआ, एक ओल्ड बुजुर्ग आदमी से, उससे वो मिला। द ओल्ड मैन वॉन्टेड हिम टू टेक हिम होम। अब वो ओल्ड मैन क्या चाहता था, उसने क्या रिक्वेस्ट उससे किया कि वो उसको उसके घर तक पहुंचा दे। एलान हैड टू अटेन ऑन हिम। अब देखिए उस बच्चे के अंदर ये है कि उसने मना नहीं किया कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उसने उसके बात को माना और उसके कहने के अनुसार वो रुका उसके पास। When he reached the ground, the game had already started. अब ये सब करने पर, उस आदमी की सहायता करने में, उस बुजुर्ग की मदद करने में वो लेट हो गया, और जब वो प्लेग्राउंड पहुंचा तो बहुत ज्यादा लेट हो गया था और गेम जो था वो स्टार्ट हो चुका था। द स्पोर्ट टीचर फॉरबेड हिम टू प्ले। और स्पोर्ट टीचर ने तब कहा खेल में एक रूल होता है, और रूल के अकॉर्डिंग क्योंकि वो देर से आया था इसलिए उसको खेल में नहीं लिया गया, उसको मना कर दिया। और एंड टुक ऑन द बॉय ऑन हिज प्लेस। और उसने एक दूसरे लड़के को उसकी जगह खेल में ले लिया। Alan was disappointed. He had returned home sad and dejected. ऐसा करने के बाद एलान जो था बहुत ज्यादा निरुत्साहित हो गया, बहुत ही हताश हो गया, और उसके बाद वो बहुत ही मायूस और दुखी मन से अपने घर को वापस लौट गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका लेसन फिनिश हुआ। अब आप इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिए और इसको आप याद कीजिए, क्योंकि हम इसका फिर आपका टेस्ट भी ले सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।